جناب اسپیکر، آج پوری مسلم امہ، پاکستان کا ہر شہری، ہر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والا، ہر سیاسی ہمدردی رکھنے والا کسی بھی سیاسی جماعت سے، خواہ آج وہ اس ایوان میں ہے یا پاکستان میں کسی جگہ ہے یا دنیا میں کسی جگہ ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ ہر وہ شخص جو انسانیت پر یقین رکھتا ہے، جو انسانیت کی قدروں پر یقین رکھتا ہے، جو انسانی حقوق پہ یقین رکھتا ہے، آج اس کا دل دکھی ہے۔ اور یہ کافی عرصے سے، جب سے وجود میں آیا، فلسطینیوں کے لیے زندگی تنگ کر کے رکھ دی گئی، ان پر ظلم کے وہ پہاڑ توڑے گئے، ان پر اتنے ظلم ہوئے کہ جس کی مثال شاید تاریخ میں ڈھونڈنی اتنی آسان نہ ہو۔ جناب اسپیکر، مجھے یہ بات کرتے ہوئے کوئی بات نہیں ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ فلسطینی کمزور، امت اسلامیہ کمزور، اسرائیل طاقتور ہے اور اس کے حواری بہت ہی طاقتور۔ اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں، جو ممالک کھڑے ہیں، ویسے تو انسانی حقوق کی بات کرتے وہ تھکتے نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو اتنے بڑے بڑے کیسز بنا لیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے دعوے ہوتے ہیں کہ انسانی حقوق کی وہاں پر خلاف ورزی ہوگی، انسانی حقوق کی وہاں پر خلاف ورزی ہوگی، وہ جانوروں کی حقوق کی خلاف ورزی کی بات کرتے ہیں، وہ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس کہ اسرائیل جس بہیمانہ طریقے سے، جس خوفناک انداز سے، جس ظلم کے ساتھ وہ فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، ان کا خون کر رہا ہے، خون کی ندیاں بہا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج اس گلوب کی، اس کرۂ ارض کی ساری انسانیت کو کھڑے ہو کر یہ بات کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو سکی۔ کمزور اور طاقتور کی یہ جنگ ہے، اور طاقتور اپنے طاقت کے نشے میں ہر وہ حد کراس کر رہا ہے جو انسانیت کی تذلیل ہے۔ جناب اسپیکر، کہاں گیا جنیوا کنونشن؟ کہاں گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس؟ کہاں گیا سلامتی کونسل؟ کہاں گئی یہ یو این او؟ کہاں گئی وہ ساری تنظیمیں جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے؟ آج تو یہ ہو رہا ہے جناب اسپیکر کہ اسکولوں پر بمباری کر کے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں کو نہیں بخشا جا رہا ہے، مریضوں کو مار دیا جاتا ہے، مرے ہوئے لوگوں کو بھی بمبارڈمنٹ کر کے اور مارا جا رہا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ کل پرسوں جو کچھ ہوا ایران میں، اس کی مثال کہاں ملتی؟ کیا یہ جو بہت بڑے بڑے نامی گرامی ہیں، انسانیت کی بات کرنے والے، انٹرنیشنل نارمز کی بات کرنے والے، بین الاقوامی حدوں کی تحفظ کی بات کرنے والے، ملکوں کی سوورینٹی کی بات کرنے والے، انڈیپینڈنس کی بات کرنے والے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ اسماعیل ہانیہ کو نہیں مارا گیا، یہ وہ جو تمام نارمز تھے، وہ جو تمام وہ اخلاقیات تھی بین الاقوامی، اس کی دھجیاں اڑا دی گئی، لیکن کوئی کچھ نہیں بولا، اس لیے کہ وہ طاقتور ہیں، اور جن کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ کمزور۔ سب کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن جناب اسپیکر، آج اسماعیل ہانیہ اور اس کے خاندان کی یہ جو قربانی ہے، فلسطینی جو قربانیاں دے رہے، اس کی مثال بھی تاریخ میں نہیں ہے۔ لیکن یہ اگر جنگ ہو، وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے ان کے ملک پر قبضہ ہو، اس کو کوئی اور معنی پہنا دیے جاتے ہیں۔ کشمیر کی بات ہو تو اس کا ایک دی جاتی ہے،
लेकिन अगर यही तो फौरी तौर पर उसका हल निकल आता है। यूनाइटेड नेशंस भी जो है वो हरकत में आ जाती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी शुरू हो जाता है, और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमें जो हैं वो भी चलाना शुरू कर देती हैं। इस पे सोचने की जरूरत है। हम आज ये खुशाइंद बात है कि हम सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर ये करारदाद मंजूर की है, उस पर मैं सबको डिवाइड के उस तरफ भी और इस तरफ भी खराजे तहसीन पेश करना चाहता हूं। लेकिन जनाब स्पीकर, हम भी क्यों उस तरीके से उनकी मदद नहीं कर सकते? किसी को हमारा खौफ क्यों नहीं? किसी को हमारा डर क्यों नहीं है? उसकी भी एक वजह है कि हमने अपने मामलात को बहुत उलझा लिया है। हम अपने मुल्क की हालात के जो हमारे चैलेंजेस हैं, जिस तरह हमने उनका सामना करना था, मिलकर एक जज्बे के साथ, एक जोश के साथ, एक होश के साथ, वो हम नहीं कर रहे। हम भी तकसीम हैं। हम छोटी छोटी पैटी पॉलिटिक्स जो है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। खाए हमारी इकॉनमी हो, आज हमारी कौन बात सुनेगा? हमने अपना फर्ज शायद अदा किया है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस वक्त वही इसराइल का वजीर आजम नेतन्याहू जब कांग्रेस को खिताब करने के लिए जाता है अमेरिका, तो उसके हर फिक्रे के ऊपर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दी जाती है। वो दे रहे हैं जो इंसानी हकूक के अलंबरदार हैं, जो हमें सबक देते हैं, जो हमें हमेशा ये कहते हैं कि इंसानी हकूक जो है वो वहां उसकी खिलाफ वर्जी होगी, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। तो ये कौन सी, ये कहां की इंसानी हकूक की अलंबरदारी है कि एक तरफ तो खून बहाया जा रहा हो और वो खड़े होकर कहता है कि जो कुछ मैंने किया है मैंने ठीक किया, इससे ज्यादा भी करना पड़ा तो मैं करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये है पूरी दुनिया इस वक्त एक तरफ और चंद ममालिक एक तरफ। जनाब स्पीकर, जितना भी दुख किया जाए इस्माइल हानिया की इस शहादत पर वो कम है, जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन मैं ये एक बात यहां जरूर इस हाउस के सामने रखना चाहूंगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आवाज में ताकत हो, जब हम कोई आवाज बुलंद करें, 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, एटमी ताकत है हम, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती? इसलिए नहीं सुनी जाती जनाब स्पीकर, वजीर आजम साहब मौजूद हैं, लीडर ऑफ दी अपोजिशन या अपोजिशन के रहनुमा और ज़मा यहां मौजूद हैं, कि हम बहुत छोटे छोटे मसाइल में हमने उलझकर अपना सारा जो निजाम था उसको तबाह कर लिया। हम किसी चैलेंज को भी बहैसियत कौम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी भी मुश्किल को बहैसियत कौम खड़े होकर उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपने आप को एक ऐसे गर्दाब में फंसा लिया है कि हमें खुद नहीं समझ लग रही कि हम कहां पर हैं और किस तरह इससे बाहर निकलना है। जनाब स्पीकर, जब तक हम अपने पांव पर खड़े होने के काबिल नहीं होते, जब तक हम माशी तौर पर ताकतवर नहीं होते, तादाद तो हमारी बहुत ज्यादा है। कितनी तादाद है इसराइल की, कितनी पॉपुलेशन और कितनी आपकी है, कितनी आबादी है, कितनी ताकत है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि हम सब मिलकर भी कमजोर हैं और वो अकेला हमसे ताकतवर है। इसलिए कि मैं समझता हूं कि वो अपने मुल्क को, अपने माशरे में उन्होंने बहुत सारे मामलात को इस तरह कंट्रोल किया है जिससे एक माशरा मजबूत और ताकतवर होता है, और उसके पीछे जो कुव्वतें खड़ी हैं उनसे हम सब लोग खाइफ, हम सब लोग किसी ना किसी तरीके से उनके मामलात के आगे मजबूर और बेबस और बेकस हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत से नवाजा है। मैं बड़े दुख से ये बात कर रहा हूं। हम कहां फंसे हुए? 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, यहां तो कभी हमने बहस नहीं की इस पर कि हम किस तरह इस मुश्किल से बाहर निकलें, किस तरह इन चैलेंजेस से ओहदा भरा हों। बड़े बड़े काबिल लोग जो हैं वो अपोजिशन में भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे कानूनदान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे सियासतदान बैठे हुए हैं,
बड़े बड़े अच्छे, मैं समझता हूं कि हम सब लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। यहां एक मेंबर भी ऐसा नहीं है, ना हाउस के अंदर ना गैलरी में बैठे हुए लोगों में से, जो पाकिस्तान से टूटकर मोहब्बत ना करता हो, जो पाकिस्तान से इश्क ना करता हो। लेकिन उसके बावजूद क्या है, हमने एक दूसरे का चेहरा खराशें डाल डालकर खराब कर दिया, हमने एक दूसरे का चेहरा बगाड़ कर रख दिया, हमने बहसियत कौम अपने आप को तकसीम कर लिया, तकसीम दर तकसीम, कभी मजहब के नाम पर, कभी माशरे के नाम पर, कभी जुबान के नाम पर, कभी इलाकाई तकसीम कर करके हमने छोड़ा क्या। खुदा के लिए ये करारदादें बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनमें ताकत जब आएगी जब पाकिस्तान में हम आंगी होगी, यकसुई होगी, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, जब लोगों को, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ये 25 करोड़ लोग एक हैं, ये एक एटमी ताकत है। फिर जब आप इसराइल को कहेंगे कि खबरदार, कल अगर तुमने यहां पर बम्बार्डमेंट की, कल अगर तुमने फिलिस्तीनियों का खून बहाया तो हम इसका बदला लेंगे, तो वो सुनेगा ये बात, आज नहीं सुनेगा। तो आए सबसे पहले हम अपने घर को ठीक करें, आए हम अपने घर को ठीक करें, और खुदा के लिए कोई डायलॉग ओपन कर लो। अब भी जनाब वजीर आजम, मैं आपसे गुजारिश करूं, यू आर एट दी हेल्म ऑफ दी अफेयर, आए कोई डायलॉग ओपन करें, अपने मुल्क को भी बचाएं और मिल्लत इस्लामिया के लिए भी ताकत बनने की कोशिश करें। तो ये उसी वक्त होगा जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़े, सियासत करें, जरूर सियासत करें। आपका अगर कोई बंदा गिरफ्तार है, उसकी बात करें, उसको गिरफ्तार ना होने की, उसको आजाद होने की बात करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक हो जाएं। और यहां बैठकर जो आप बात करें वो हम आंगी की करें, और जो हमें दरपेश मुश्किलात हैं, आपको भी पता है जनाब, हमें भी पता है, उन पर भी तो बात की जाए। और आखिर में ये मैं कहूंगा कि मैं फिलिस्तीनी अवाम को, उन माओं, बहनों और बेटियों को खराजे तहसीन और अकीदत पेश करना चाहता हूं। मैं कश्मीर के उन अजीम दोस्तों को जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, खराजे तहसीन पेश करना चाहता हूं, और उनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि जुल्म और बर्बरियत की रात जितनी भी स्याह हो, जितनी भी काली हो, जितनी भी गंभीर हो, लेकिन एक ना एक दिन किसी सवेरे के इंशाअल्लाह ताला दहलीज पर उसको दम तोड़ना पड़ता है, और एक सूरज तलू होगा, और वह इंशाअल्लाह ताला फिलिस्तीनियों की आज़ादी का होगा और कश्मीर की आज़ादी का होगा। शुक्रिया जी। जुमे की नमाज के फौरन बाद यहाँ पे नमाज जनाजा इंशाअल्लाह पढ़ा जाएगा। मौलाना